screen? Yes, sir. Okay, so let's start. I'll use my marker. So number 24 क्या है इसमें? आपको ये 24 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 1 2 3 कर सकते हैं. The officer in charge of a navigational watch shall 1 2 3 4 ऐसा डाल सकते हैं. ठीक है. So first of all, shall keep the watch on the bridge. मेरे ख्याल से ये ज़्यादा हो गया है, इसको हटाओ. मैं ब्लैक पेन यूज़ कर लूँ या रेड पेन यूज़ कर लेते हैं. एक मिनट. ओके, ये कलर के साथ. ओके. So officer of the navigational watch perform keep watch on the bridge. First thing, no circumstances leave the bridge until you are properly relieved by a certified officer, and you will continue to remain responsible despite the presence of the master on the bridge unless you have been verbally asked by the master that he has taken. Then number 2, during the watch you will क्या course हम लोग जा रहे हैं, speed, position check करोगे, sufficient intervals, and use all navigational aids that are available to you. Officer and watch of a navigational watch shall have full knowledge of the location and operation of all safety and navigational equipment. सर आपकी वॉइस क्रैक है बीच में. वॉइस क्रैक कर रही है. ओके, चलिए 1 minute, लेट मी जस्ट चेंज माय सेटिंग. 1 minute होल्ड कीजिए. हाँ, ये चीज़ें ना मेरे को टाइम पे बता दीजिए आप, ताकि ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो जाए. हाँ जी, अब कैसा है अभी? सर लाउड एंड क्लियर है. अभी क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. अब आप लोग की आवाज नहीं आ रही भाई. इज क्लियर नाउ? बेटर? ओके. यस सर. स्क्रीन दिखाई दे रहा ना मेरा? सर स्क्रीन दिख रही है. यस ओके, दिख रही है ना? ओके. जी सर. So हाँ, he will have full knowledge of the location and operation of all safety and navigational equipment on board. Then officer and watch of a navigational watch shall not be assigned to undertake any other duties which will interfere with the safe navigation. Okay, coming back. Number 5, the officer of the navigation watch shall use he will be in charge and using the radar during the navigation watch, comply with international regulations for the preventing of collisions at sea. Coldex will comply karega when he is using the radar. In case need be, the officer in charge of navigation watch shall not hesitate to use the helm, engine and signaling apparatus. So when you are on watch, you are fully entitled to use your helm, your engines, your signaling equipment जो आपके पास है. मतलब स्पीड रिड्यूस करनी है इमरजेंसी में, यू कैन रिड्यूस, बट अदरवाइज टाइम है तो इंजन रूम को बोल दो उनको स्पीड रिड्यूस करने के लिए, सो दैट दे कैन ग्रेजुअली रिड्यूस इट. बट अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी मैनूवरिंग में हो, then you can use the engines as you feel like.
So, but you are in control of the engines, of the helm, and of the signaling apparatus. Okay, you will have navigation shall know the full handling characteristics of the ship, including stopping distances, etc. अब आपका जो व्हील हाउस पोस्टर होता है, you are supposed to be familiar with that. One, कि आपका एडवांस कितना है, टैक्टिकल डायमीटर क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंसेस क्या है. ये अभी आपके साथ किया नहीं है, जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस में एडवांस में फ़र्क क्या होता है. स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग होता है, स्टॉपिंग एबिलिटी अलग होता है, एंड एडवांस अलग होता है. ठीक है, इसको ये जब टर्निंग सर्कल्स में आएंगे तब करेंगे. बट व्हील हाउस पोस्टर में ये मेंशन होता है, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये व्हील हाउस पोस्टर में सब लिखी रहती हैं. देन a proper record shall be kept during the watch of all movement and activities relating to the navigation of the ship. Obviously, course alter किया, कब किया, ये सब पोजीशन किस पोजीशन में किया, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं. In special, it is of special importance that the officer and watch at all times shall be in charge of the navigation, ensures proper lookout is maintained. So, if you are the sole lookout, और sole lookout कब होता है वो हम कर चुके हैं. It's from daylight hours only, from sunrise to sunset, good visibility, कोई, and it is safe to do so. तब हम रखते हैं. और उस टाइम में, although you are alone on the bridge, but you cannot, not keep a proper lookout. By sight as well as by hearing. अगर आपको चार्ट रूम में जाना है पोजीशन डालने, the officer in charge may visit the chart room for short periods. जैसे पोजीशन आपने डालनी है या कुछ काम है. But कब? He shall ensure that it is safe to do so and a proper lookout is maintained. आप जाइए चार्ट रूम में जरूर, बट पहले देख लीजिए सब ठीक ठाक है बाहर. You can go inside the chart room for shorter periods. और आपका रेडार ऑन है, ये आप वहाँ करेंगे. ऑपरेशनल टेस्ट आपको करना है. बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपके होते हैं जिनके आपके चेक्स करने पड़ते हैं, जैसे रेडार है, परफॉर्म टेस्ट है, एको साउंडर है, जो भी आपके टेस्ट करना है. Operational tests of all shipboard equipment shall be carried out as frequently as practicable as the circumstances permit. In particular, before hazardous conditions affecting the navigation are expected. ठीक है, so radar का हम लोग खास कर radar का टेस्ट हम लोग करते हैं prior to each watch. It has to be done and entered into the record book. Then officer in charge of navigation shall make sure कि जहाँ पे हम लोग वो कर रहे हैं, हैंड स्टीयरिंग कर रहे हैं, द पर्सन स्टीयरिंग बाय हैंड और ऑटोमेटिक वो सही कोर्स स्टीयर कर रहा है. सो ऑटोमेटिक है तो यू विल कीप चेकिंग योर कोर्स कि हाँ जो कोर्स हम स्टीयर कर रहे हैं वो सही है, राइट. एंड हैंड स्टीयरिंग में है तो यस नज़र रखते हैं दैट द हेल्प्समैन इज स्टीयरिंग द राइट कोर्स. स्टैंडर्ड कंपास एरर इज मेंटेन्ड, checked, determined and applied. Error check करना भी आपका काम है at least once a watch and after any major alteration of course. So as we know कि जो magnetic compass होता है वो heading पे depend करता है कि आपकी heading क्या है, right. जो magnetic lines of force है वो अलग अलग heading में अलग अलग क्रॉस करती हैं शिप को. इसके लिए आपके पास एक वहाँ पर कार्ड होता है, डिविएशन कार्ड ब्रिज में लगा रहता है. वेरिएशन क्या है आप चार्ट से उठा लेते हैं, इंटरपोलेट कर लेते हैं और उसके बाद वेरिएशन डिविएशन लगा के आपने एरर लगा दी. सो यू आर रिक्वायर्ड टू चेक द कंपास एरर. और जब हम कंपास एरर की बात करते हैं, इट इज़ द मैग्नेटिक कंपास जिसकी एरर हम चेक करते हैं.
राइट, जायरो कंपास को वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इफेक्ट नहीं करती हैं. So we check the error once every watch and whenever there's an alteration of course. So again you check that. और अगर मैग्नेटिक कंपास, पहले तो मैग्नेटिक कंपास होता था तो उसको हम एरर को अप्लाई करते थे. आजकल जायरो की एरर लेते हैं और उसको हम लोग अप्लाई करते हैं. Automatic pilot is to be tested once every watch. Actually automatic तो हम लोग out at sea जब हम हैं तो हम auto pilot में होते हैं. But once every watch you are required to take it on hand steering and allow the vessel to steer by hand. और जब आप हैंड स्टीयरिंग में होते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड्स, बीच बीच में ऑटो को भी टेस्ट कर लिया कि दैट इट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. नेविगेशन एंड सिग्नल लाइट्स आर टू बी फुली फंक्शनल. आजकल हम लोग ऑन करते हैं, 24 घंटा ऑन रहती है. ड्यूरिंग माई टाइम हम लोग तभी ऑन करते थे जब सनसेट हो गया, सनराइज हुआ, ऑफ कर दिया. और हमारे पास कोई स्पेयर लाइट्स नहीं होती थी. हाँ, बल्ब्स होते थे, वो बल्ब्स कभी फ्यूज हो गए तो ख़त्म भी हो जाते थे. तो हमारा जो दूसरा लैंप होता था, एक लैंप तो होता था इलेक्ट्रिकल, अगर ख़त्म हो गया, बल्ब्स नहीं है जहाज पे, तो दूसरा लैंप होता था जिसको हम ऑयल से चलाते थे. उसमें तेल होता था और उसमें विक होती है, जैसे आपके जो लालटेन बोलते हैं ना, उस टाइप का. तो उस टाइप की लाइट्स होती थी. यहाँ शायद मेरे पास भी घर में पड़ी है. हाँ, यस, आई हैव वन नेविगेशन लाइट हियर जो ऑयल से चलती थी. तो उसमें तेल डाल रहे हैं और तेल डाल के विक होती थी, विक्स को हम जलाते थे. तो जब हमारा बल्ब फ्यूज हो गया और बल्ब नहीं है जहाज में, तो हमने उसको यूज़ कर लिया, ऑयल लैंप को. राइट. सो यहाँ पे वही कह रहा है, सिग्नल लाइट्स इक्विपमेंट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. रेडियो इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, दैट इज. हाँ जी, ये लाइट कब यूज करते थे? जब जीएमडीएसएस का बैटरी नहीं था, उससे पहले ना सर? ओ, मैं तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ. यस सर. मैं तो जैसे मैंने कहा, मैंने 75 में ज्वाइन किया, तो माय फर्स्ट शिप डिड नॉट हैव रेडार्स. हमारे पास ना जायरो था, ना ऑटो पायलट था, ना जीपीएस, नथिंग. एक 24 आवर हैंड स्टीयरिंग होती थी हमारी. 6 एबीज होते थे, हर एक वॉच में 2 एबी होता था. देन रेडार्स नहीं होते थे, जायरो नहीं, कंपास नहीं. वीएचएफ होता था, एक डायरेक्शन फाइंडर होता था ओशन के लिए, ओशन पैसेजेस के लिए, पोजीशन चेक करने के लिए. वो भी अगर कहीं कोई अगर एयरपोर्ट, एरो बीकन बोलते हैं ना उसको, कोई एयरपोर्ट होगा आसपास तो भी मिलेगा डायरेक्शन. और एको साउंडर. एंड दिस इज हाउ वी यूज्ड टू सेल. Even we used to go to ports like to Persian Gulf. ठीक है. सो तब की बात कर रहे हैं. तब हमारे पास जो लैंप्स होते थे वो सुबह ऑन कर ऑफ कर देते थे लाइट्स को, ताकि बल्ब बचा रहे हमारा, और शाम को अंधेरा हो तो लाइट्स खोल दी. और ख़त्म हो गया तो ऑयल लैंप्स होते थे. वो ऑयल लैंप मेरे पास यहाँ पर एक पड़ा है. जब जहाज स्क्रैप हो गया था तो मैं उसको सुवेनियर के तौर पे ले आया था. ओके. उसमें तेल डालो, विक होती थी, उसको यूज करते थे. एनीवे, सो ये है आपका रेडियो इक्विपमेंट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. मीन्स योर जीएमडीएसएस इक्विपमेंट, योर वीएचएफ, ये सब बराबर काम करना चाहिए. यूएमएस कंट्रोल्स, अनमैन्ड मशीनरी स्पेसेस, उसके जो अलार्म्स हैं, दे आर ऑल फंक्शनिंग ऑन द ब्रिज. नाउ जितने भी IMO मैंडेटेड अलार्म्स हैं,
वो सब ब्रिज में आते हैं। जैसे इंजन रूम के जो अलार्म्स है, इंजन रूम में इंजन स्लो डाउन हो गया या शट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इंजन रूम में, सारे अलार्म्स ब्रिज पे नहीं आते। बट देयर आर सर्टेन IMO मैंडेटेड, मतलब मैंडेटरी है IMO के हिसाब से कि अगर इंजन में ये प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रिज पर अलार्म आए। सो दोज अलार्म्स आर देयर। डेक पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो अलार्म आए, फायर का फॉर एग्जाम्पल, अकोमोडेशन में कोई फायर वायर है कुछ तो वो अलार्म आ जाए। सो दीज आर IMO मैंडेटेड। नहीं तो इतने सारे अलार्म्स होते हैं, सभी अगर ब्रिज में बजने लगे तो ड्यूटी ऑफिसर तो पागल हो जाएगा। सो ओनली दोज विच आर नेसेसरी, दे आर IMO mandated and they are there on the bridge. तो उनको भी टेस्ट करना है that they are functioning properly. Okay, officer in charge of the navigation watch shall bear in mind the necessity to comply and enforce with call regs. ठीक है, 16 को भी comply करना है, safety of life at sea, call regs को. Okay, the need to station a person to steer the ship and put on steering manual control में in good time. मतलब ये है कि आपके पास जो AB है ब्रिज में, या AB को बुला रहे हो और कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट में आप हैंड स्टीयरिंग में ले रहे हो। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, ऑटो पायलट है उसका नॉब को घुमाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में क्या करते हैं, ऑटो पायलट का जो नॉब है उसको पूरा घुमा दिया। कभी कभी ऑटो पायलट के नॉब को पूरा घुमा दिया क्योंकि AB है ही नहीं ब्रिज पे। जब ऑटो पायलट का नॉब पूरा घुमा दिया आपने 180 डिग्रीज, ये सोच के कि रडर हाथ स्टार्बोर्ड चला जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि आपने कंट्रोल पैनल में रडर लिमिट सेट कर रखी है। रडर लिमिट नॉर्मली 10 डिग्री पे सेट करते हैं, तो चाहे आप उसको 180 डिग्री घुमा दो नॉब को, रडर 10 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द लिमिट दैट यू हैव सेट इन। एंड तब रियलाइज किया भाई अरे ये तो ऐसा हो गया। सो टाइमली एंड गुड टाइम, whatever action you take in an ample time, not to allow the close quarter situation to arise. तो टाइमली हाथ पे ले लो हैंड स्टीयरिंग, ऑल्टर करो। अगर 4 माइल 5 माइल का भी कर लोगे कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऑल्टर करना है, इफ यू आर द गिव वे वेसल, देन गिव वे वेल इन टाइम। जो दूसरा जहाज है उसको क्यों आप उस पर रख रहे हो कि ये अभी करेगा अभी करेगा अभी करेगा, पहले से ही कर लो ताकि वो भी शांत हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा ना। लेट्स से यू आर अ स्टैंड ऑन वेसल, आपके पोर्ट साइड से एक जहाज क्रॉस कर रहा है, आपकी नज़र उस पर रहेगी, यार इसने अभी तक ऑल्टर नहीं किया, अभी तक ऑल्टर नहीं किया, तो आप टेंशन में आ जाओगे। लेकिन अगर वो ऑल्टर कर लेता है, टाइमली ऑल्टर कर लेता है, तो आप निश्चिंत हो जाते हो। सेम थिंग फॉर यू, इफ यू मेक अ टाइमली ऑल्ट्रेशन तो वो जो दूसरा बंदा है वो भी निश्चिंत हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जितने नजदीक आओगे कंफ्यूजन, फिर विसल मारोगे, फोन मारोगे, इंजन रूम को बोलोगे, मास्टर को बोलोगे, आप हार्ड स्टावर्ड मारोगे, उसने हार्ड अपोर्ट मार दिया, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। सो व्हाटएवर एक्शन यू नीड टू टेक, टेक इट इन अ टाइमली मैनर। And remember, autopilot is not for large alteration of courses. Autopilot is only to make minor adjustments to the courses. Set and drift. Right? अब out at sea है, full speed में आगे है, और आपने ऑटोपायलट पर डाल दिया, हैंड स्टीयरिंग की जरूरत नहीं है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑटोपायलट यूज करते हैं हम कि जहाज ड्रिफ्ट होता है तो 1 डिग्री 2 डिग्री का सेट लगा दिया, या विंड की वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है तो आपने लीवे लगा दिया, ये चीज के लिए होता है, नॉट फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्सेस। सो वो 1-2 डिग्री करके जो ऑल्टर करते हैं वो नहीं करना चाहिए। Whenever you are making an alteration, especially collision avoidance, it should be large enough to let the other ship know कि भाई हमने ऑल्टर कर दिया।
Okay. When the ship is on automatic steering, it is highly dangerous to allow a situation to develop to a point where the officer in charge of the watch is without assistance. Right? तो आपने AB को पहले ही बुला के रखना है, स्पेशली ट्रैफिक एरिया है, यू नो कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी डेवलप हो सकती है. Call the AB on the bridge and he should be on hand steering. One motor, two motor, that's a different this thing. But traffic के टाइम में 16 भी कहता है that you should be on hand steering. ठीक है, तो आपने बुला दिया and to break the continuity of the lookout. अब आप अकेले हो ब्रिज में, आप लुकआउट को भी देख, आपने लुकआउट का काम भी कर रहा, आप स्टीयरिंग भी कर रहे हो, आप रेडार को भी चेक कर रहे हो, डिस्टेंस कितना है, क्या है, पोजीशन भी देख रहे हो आप एक्डिस में. So you are too much occupied. You are allowing a dangerous situation to develop. So this should not be done. Then officer of the navigation watch shall be thoroughly familiar with the use of electronic navigats. जितने भी navigats आप देखे जा रहे हैं, including their limitations, खासकर मैं कहूँगा. याद रखिए कि आपका जो GPS है, आपका जो ECDIS है, they are very important documents, equipments, right? They are very helpful in navigation, but they are, at the same time, they are very dangerous equipments. There have been a lot of ECDIS assisted groundings, lot of GPS assisted groundings. ठीक है, ये आपको जब GPS पढ़ाएंगे तो शायद वो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा. बट क्या गड़बड़ी हो सकती है ECDIS को और GPS को लेके, खासकर GPS को लेके, ये आपको मालूम होना जरूरी है. राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा GPS यूज करते हैं, ECDIS भी है, क्योंकि ECDIS में GPS की पोजीशन सुपर इम्पोज्ड है. GPS तो सर हो गया है ऑलमोस्ट हमारा भी. हाँ जी, तो उसमें उसकी जो लिमिटेशंस है, राइट, वो आप देखिएगा, पूछ लीजिए उनसे. नहीं होंगी तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो मुझसे मैं बताऊंगा आपको कि क्या हो सकता है खतरा. एंड छोटा मोटा खतरा नहीं, a big risk which is involved with GPS. ठीक है, चलिए ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं बता दूंगा आपको. इसको खत्म कर ले, पहले टाइम होगा तो इसमें कर लेंगे, नहीं तो उनको पूछ लीजिएगा. बट दिस इज अ शिप हैंडलिंग का, चलो शिप हैंडलिंग का है, मैं बता दूंगा आपको अगर इसको खत्म करें पहले. ठीक है, सो इसकी जो लिमिटेशंस है ECDIS की और GPS की, these are very very important. They are aids to navigation. They are there to help you. Okay, so इसको ध्यान में रखिए, एको साउंडर और ये सब navigate सही है. Now, the officer in charge of the navigation watch shall use the radar whenever restricted visibility encountered, and of course with due regard to its limitations. radar के अपने limitations भी होते हैं. राइट, ये मत सोचिएगा कि आपने गार्ड जोन डाल दी है, आगे पीछे साइड में सब जगह गार्ड जोन डाल दी है, 3 माइल पे 5 माइल पे कोई भी टारगेट अगर आएगा तो उसमें अक्वायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली और मेरे को अलार्म दे देगा. राइट, डोंट, इस भरोसे में मत रहना. कभी कभी टारगेट से एस्केप कर जाते हैं, कभी कभी इतना छोटा होता पता नहीं चलता है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू सी इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू और हेडिंग towards you, or you are heading towards him. वो है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस यही है. takes a split of a second. Okay, officer in charge of a navigational watch shall ensure the range scales employed are changed frequently. मतलब आप long range and short scale रेंज स्कैनिंग कर रहे हैं, स्पेशली इन पोअर विजिबिलिटी. आपने रेडार यूज कर रहे हैं, दोनों रेडार हैं, एक 6 माइल्स रेंज पे, एक 12 माइल्स रेंज पे.
जो 6 माइल वाला है उसको आपने 3 और 12 में चेंज करते रह रहे हैं ऑल्टरनेटली। शॉर्ट स्केल स्कैनिंग कर रहे हैं 3 माइल पे और लॉन्ग रेंज 12 माइल्स पे। और जो दूसरा रेडार है वो 12 नॉटिकल माइल्स पे है, उस पर भी आप लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज स्कैनिंग कर रहे हैं। मतलब 12 वाले से 6 में आ गए और फिर 24 में भी एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, स्पेशली इन पुअर विजिबिलिटी, राइट। एंड व्हेन देयर इज पुअर विजिबिलिटी, ऑब्वियसली उसके अलग तरीके हैं नेविगेशन के, लुकआउट के, राइट। अप्रोप्रिएट रेंज स्केल यूज करना है आपने व्हेन यू आर यूजिंग रेडार। पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल भी अकॉर्डिंग टू, अगर चार्ट्स हैं, और आजकल चार्ट्स नहीं होते हैं, आजकल तो पोजीशन अपने आप प्लॉट होती जा रही है, बट एक डिस्क पर फीचर होता है कि आप फिक्स डाल सकते हैं। एवरी 20 मिनट्स पे आपने उसको बोल दिया तो पोजीशन डाल देगा वहाँ पे डेट और टाइम के साथ। So this is your duties, I mean performing a navigational watch. So handing over a watch is one, taking over a watch is another thing, और taking over और handing over के बीच में performing a navigational watch. So this is your answer to that. Okay. Now we are coming to the situations when you will call the master on the bridge. ये भी आपका एक क्वेश्चन है। List the situations when you will notify the master immediately or call him. तो ये क्या restricted visibility में बुलाओगे उसको आप, ट्रैफिक कंडीशन ज़्यादा हो गई है, causing concern, आपसे अकेले मैनेज नहीं हो रहा, you will call him. स्टीयरिंग डिफिकल्टीज हो रही है मेंटेनिंग कोर्स में, फेलियर टू साइट लैंड, नेविगेशनल मार्क आपको दिख जाना चाहिए था, लैंड दिख जाना, लाइट या जो भी था नहीं दिखा अभी तक, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द पोजीशन। कोई ऐसा नेविगेशनल मार्क, लैंड साइट, कुछ ऐसी चीज़ ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखाई देती है तब। ब्रेक डाउन ऑफ इंजन रूम मशीनरी, कोई भी ब्रिज इक्विपमेंट, इंजन इक्विपमेंट, किसी में कोई अगर ब्रेक डाउन हो रहा है इमीडिएटली इन्फॉर्म हिम। रेडियो इक्विपमेंट माल फंक्शंस, heavy weather, ship meets danger to navigation, derelict, कोई इमरजेंसी आ गई, थोड़ा और ऐड कर सकते हैं इसमें। Whenever in doubt, यहाँ पे लिखा नहीं है, हाँ है वैसे, in heavy weather if in doubt possess as to the weather damage, और in doubt में हो call him। कोई डिस्ट्रेस मैसेज आया है call him। बैरोमेट्रिक प्रेशर फॉल हो गया, सडनली टू मच फॉल हो गया, call him, राइट। डिस्पाइट द रिक्वायरमेंट, तो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जो उसने लिखा है उसके अलावा की बात करें, द फॉरगोइंग शुड कॉल हिम इन एडिशन, नॉट हेजिटेट, जब तक मास्टर ब्रिज पर नहीं आता है तब तक यू शुड नॉट हेजिटेट टू टेक वट एवर एक्शन दैट यू नीड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द शिप। सो मास्टर को इन्फॉर्म कर दो और उसके आने से पहले वट एवर यू थिंक इज द बेस्ट एक्शन दैट यू कैन टेक वो ले लीजिए आप, राइट। जो भी वॉच कीपिंग पर्सनल है ब्रिज में, एबी है अगर एबी को, या अगर आपके वॉच में लुकआउट पर्सन है, उसको जो इंस्ट्रक्शन देने हैं दे शुड बी गिवन। जो लुकआउट पर्सन है उसको भी इंस्ट्रक्शन देना है। मतलब लुकआउट वाला जो है, जो आदमी लुकआउट के लिए आता है, उसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ही शुड बी प्रॉपर्ली पोजिशन, he should be properly trained, and he should be properly instructed. मतलब ये नहीं कि बाहर गर्म हो रहा है, अच्छा भाई अंदर आ जाए, एक कोने में खड़ा हो जाए, नहीं कह सकते ऐसा। he should, उसकी पोजीशनिंग बाहर है, उसको बाहर लुकआउट रखती है तो बाहर लुकआउट रखती है, राइट। मंकी आइलैंड में रखना है उसको, मंकी आइलैंड में खड़े हो जाओ, वहाँ से आप लुकआउट रखो तो वहाँ रखनी है। अंदर ठंडा हो रहा है, बाहर ठंडा हो रहा है तो अंदर आ जाए, या बाहर गर्म हो रहा है अंदर आ जाए, दैट इज नॉट दैट। आप ड्यूरेशन कम कर दीजिए, 4 घंटे की वॉच में आता है, आप 2 घंटा कर दीजिए, 1 घंटा कर दीजिए, राइट, रोटेट कर दीजिए। एंड ही शुड बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, उसको मालूम होना चाहिए, ही शुड बी वॉच कीपिंग पर्सनल आना चाहिए उसका,
and must be properly instructed कि भाई आपको लुकआउट रखने के लिए वहां पे है इंस्ट्रक्शंस दो. फॉर एग्जांपल जरा ध्यान रखना, नजर रखो, इस साइड में एक फ्लैशिंग लाइट दिखाई देगी बॉय की, जब दिखेगी तो मुझे बताना. या कोई जहाज क्रॉस कर रहा है, या कोई जहाज साउथ बाउंड है, ऑपोजिट बाउंड है, वो जब दिखेगा मुझे बताना. तो उसको इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है. या कोई लाइट हाउस दिखने वाला है. So properly positioned, properly trained. Okay, now keep the watch under various scenarios. Clear weather में watch कैसे रखेंगे. ठीक है, normal watch रखते हैं. Shall take into account the accurate compass bearing position fixing कर रहे हैं, risk of collision जो normal watch आप करते हैं. Right, पोजीशन फिक्सिंग हो गई, कोलिजन अवॉइडेंस हो गया, लुकआउट हो गया, ये सब आप कर रहे हैं नॉर्मल में. कोई एक्शन लेना है तो यू विल टेक अर्ली एक्शन एज पर कॉल रेग्स टू कंप्लाई विद कॉल रेग्स. ठीक है, यू कैन बी अ सोल लुकआउट इफ नेसेसरी, और रेडार यूज कर रहे हैं. दिस इज नॉर्मल कंडीशन. अब रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूटीज हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं. और एक्स्ट्रा क्या करते हैं? वी इन्फॉर्म द मास्टर, वी पुट अ लुकआउट, नेविगेशन लाइट चालू कर दी, रेडार दोनों चालू कर दिए, वेसल चालू कर दिया, फॉग हॉर्न हम चालू कर देते हैं. यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, बट हमने फॉग हॉर्न चालू कर दिया. हम हैंड स्टीयरिंग में आ जाते हैं, इंजन रूम को बोल देते हैं, स्पीड रिड्यूस कर देते हैं. राइट, डेक ये अपना डेक में कोई काम चल रहा है चिपिंग पेंटिंग का, वो बंद करा देते हैं सो दैट वी कैन हियर द साउंड सिग्नल ऑफ द अदर शिप्स. व्हील हाउस के दरवाजे खोल देते हैं. राइट, सो दिस इज सम एक्स्ट्रा थिंग्स दैट वी डू इन रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी. इन आवर्स ऑफ डार्कनेस अगेन हमने एक लुकआउट को बुला लिया. नॉर्मली ए बी होता है आउट एट सी, सो वो ए बी जो है आपका लुकआउट ड्यूटीज भी कर लेता है इन क्लियर वेदर एंड एट नाइट टाइम. रात को भी विजिबिलिटी खराब है तो अगेन ए बी तो होगा ही होगा हैंड स्टीयरिंग में, प्लस वन एक्स्ट्रा पर्सन फॉर लुकआउट. कोस्टल एंड कंजेस्टेड वाटर्स अगेन हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्यूटीज हो जाती है. कंजेस्टेड वाटर्स है, you will be in hand steering, you will have a lookout person. आपका पोजीशन प्लॉटिंग वो भी आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है. एंड पोजीशन प्लॉटिंग यहां पे मैं कहना चाहता हूं कि जीपीएस सुपर इम्पोज कर रहा है पोजीशन ऑन योर एक्टिस. सिंस यू आर कोस्टिंग, you are required to verify the GPS position by alternate means. और पोर्ट स्टेट कंट्रोल वाले अगर आएंगे ना, वो चेक भी करेंगे. सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्लॉट पोजीशंस बाय ऑल्टरनेट मींस. कोस्टल वाटर्स है तो पोजीशन है वहां पे, रेडार में जीपीएस की पोजीशन आ रही है, रेडार से आप डिस्टेंस बेयरिंग ले लीजिए, दो डिस्टेंसेस ले लीजिए, दो बेयरिंग्स ले लीजिए, एक डिस्टेंस बेयरिंग ले लीजिए. विजुअली दिखा रहा है तो आप विजुअली भी ले सकते हैं दो बेयरिंग्स, और आके प्लॉट कर दीजिए. Verifying the position, it is required. Right, and navigation with pilot on board. आपकी responsibility, आपकी duties में कोई कमी नहीं आती है. You will continue to do what you are supposed to be doing as an officer on watch. The pilot is there to assist navigation. The pilot has the control of the vessel, has the command of the vessel. So you will continue to do your duties as before. अगर पायलट कोई चीज गलत कर रहा है तो तब you will tell him, you will inform the master, और मास्टर के आने तक you will take whatever action necessary in the best interest of the safety.
खैर ये नेविगेशन विद पायलट ऑन बोर्ड हम बाद में करेंगे जब हम STCW में आएंगे। व्हेन यू आर एट एंकर आपकी अलग वॉचेस हो जाती है। सो हमने पोअर विजिबिलिटी देख लिया है, हमने नॉर्मल देख लिया है। वेदर अगर खराब होता है तो अगेन यू आर सपोज्ड टू बी एनहांस स्टीयरिंग एंड यू शुड हैव अ लुकआउट पर्सन। स्पीड कम कर दिया, वेदर रिपोर्ट्स ले रहे हैं हम लोग, वेदर फैक्सेस हम लोग ले रहे हैं, राइट। इफ नेसेसरी रूट को चेंज कर रहे हैं टू अवॉइड हैवी पिचिंग एंड रोलिंग। सो अगेन these are your duties during heavy weather में। इंजन RPM कम कर रखा है। When you are at anchor, अभी अगेन अच्छा चलो कर लेते हैं, बट एंकर का जो है ये जब हम एंकर वर्क करेंगे ना उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। चलो दोबारा कर लेंगे इसको। एंकर में आपकी ड्यूटीज क्या होती है? हाउ विल यू टेक ओवर एंकर वॉच? 10 मिनट 15 मिनट पहले जाओगे, कहीं पर लिखा नहीं 10-15 मिनट, इट सेज एम्पल टाइम, गो ऑन द ब्रिज इन एम्पल टाइम। अब वो एम्पल टाइम 10 मिनट है 15 मिनट है तो आप ब्रिज पे पहुंच गए। अगेन सब कुछ देखोगे, वहाँ पोजीशन चेक करोगे, एंकर चेक करोगे, कौन सा एंकर है यूज़ कर रखा है, एंकर बॉल या एंकर शेप या एंकर लाइट डिस्प्लेड है या नहीं है, डे टाइम है नाइट टाइम है, कंपनी के फ्लैग्स हॉइस्ट कर रखे हैं, कर्टसी फ्लैग्स हॉइस्ट कर रखे हैं, रात के टाइम में उतार रखे हैं, देन गैंगवे लेट है, गैंगवे ऊपर है, नेट लगा रखा नहीं लगा रखा है, या पायलट लैडर रिकअप कर रखी है फॉर समबडी, एंकर चेन कैसे लीड कर रही है, रेड गार्ड्स लगा रखे हैं, डेक में राउंड्स ले रहे हैं, पोजीशन वेरीफाई कर रहे हैं, वी आर चेकिंग बियरिंग, बीम बियरिंग्स, डिस्टेंस ऑफ वेसल जो सबसे नज़दीक है आपके, राइट। GMDSS वॉच आप करोगे नॉर्मल, कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है। VHF में आप लिस्टिंग वॉच रखोगे चैनल 16 पे, और स्पोर्ट का जो भी है लिस्ट, राइट। सो टाइडल टाइमिंग्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि शिप का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो दीज आर नॉर्मल, ये लिस्ट यहाँ पर बनी है, बट बहुत सारी आपने वॉचेस रखी है, राइट। इसको हम दोबारा करेंगे व्हेन वी डू एंकर वॉच एंकरिंग। तो एंकर वर्क जब करेंगे तो ड्यूटीज हाउ यू टेक ओवर एन एंकर वॉच वहाँ पे फिर देखेंगे। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन कीपिंग अ रेडियो वॉच। अब पहले रेडियो ऑब्जर्व होता था, अब वो तो है नहीं, बट जो GMDSS का इक्विपमेंट है वो सारा कुछ आपका ब्रिज में ही है। एंड व्हाट आर द अरेंजमेंट्स? Master and watch shall always keep in mind to ensure that the radio watch is maintained as per the regulations जो भी है. Then ensure that primary duties of radio watchkeeping are not adversely affected by the attending radio traffic not relevant to safe movement and safety of navigation of the ship. Take into account the equipment fitted on board and its operational status. अब यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं. This is mainly with passenger ships. ठीक है, passenger ships और ships which are carrying this thing. हमारा काम क्या है? हम रेडियो इक्विपमेंट का जो GMDSS इक्विपमेंट है उसके जो टेस्ट है हमारे, हम वो टेस्ट करते हैं. You know, there are certain checks that you are required to do, that we do it. This is, ये जो है normally this is for ships which are having a radio officer on board. Keeping a radio telegraph watch या radio log maintain करना है. ठीक है, समरी ऑफ डिस्ट्रेस मैसेजेस रिसीव्ड, हमारे सारा कुछ जो आता है SATC में आता है या NAVTEX में आएगा. सो दिस इज जनरली फॉर ओके. सो दिस इज कीपिंग अ रेडियो वॉच आउट एट सी. नाउ कीपिंग अ वॉच इन पोर्ट, ये अगेन हम नेक्स्ट टाइम लेंगे. कार्गो वॉच है और इसी में आता है कीपिंग अ वॉच इन पोर्ट with hazardous cargo. So यहाँ कहीं पे आपका hazardous cargo, taking over watch. Which watch is this? Taking over a deck watch. ठीक है, and then taking over a watch, performing a deck watch. Then
when carrying dangerous cargo? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका. How will you take over a deck watch? How will you perform a deck watch? Particularly when a ship is carrying hazardous cargo. तो नॉर्मल वॉच कर रहे हैं, लेकिन जब hazardous cargo जा रहा है तो हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं. और उसके बाद ये इंजीनियरिंग वॉच आ गया. दिस इज नॉट फॉर यू, बट हाँ, फेज 2 के लिए ये वाला क्वेश्चन एक आ जाता है जब आप फेज 2 में आओगे. ठीक है. तो नेक्स्ट आवर सेशन जब भी होगा, वी विल डू दिस कीपिंग अ वॉच इन पोर्ट, कार्गो वॉचेस पोर्ट के. सर ओके, एक मिनट का यहाँ नंबर 54 और दिस इज जूनियर. ओके ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए. एक मिनट होल्ड कीजिए सर. अभी भी ब्रेक हो रही है? हाँ जी, क्लियर है अभी? यस सर, थोड़ी थोड़ी सर ग्लिच हो रही है सर बार बार. अच्छा, ओके. So what we'll do is we'll keep this one for next topic. कार्गो वॉचेस, पोर्ट में वॉचेस कैसे रखते हैं, वॉच अरेंजमेंट कैसा होगा, how will you take over a watch, how will you perform a deck watch, and then particularly with hazardous cargo. Okay, so next वीक का हम ये रखेंगे. नेक्स्ट वीक हम एक ये रखेंगे और नेक्स्ट वीक एक सेक्सटेंट भी रख लेंगे. सेक्सटेंट भी करना आपके साथ. अब आपके साथ यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ मैं. एंड लेट मी सी, मेरे पास यहाँ पे जगह है या नहीं है. ओके, नहीं यहाँ पे नहीं है. इसको मैं बंद कर रहा हूँ एंड मैं आपके साथ पेंट शेयर कर रहा हूँ. पेंट पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जीपीएस की जो मैं बात कर रहा था, कहाँ तक हो गया जीपीएस आपका? हाँ जी सर आज ही लिमिटेशन करवाई है सर ने 6 तारीख की. लिमिटेशन और एरर करवाएंगे सर. ओके ओके, लिमिटेशन कराई है. तो चलिए मैं लिमिटेशंस में इसका जो मेन है मैं आपको जरा बताऊं कि क्या मेन तो नहीं है. शायद सिनासर को मे नॉट बी अवेयर बिकॉज ही इज़ नॉट अ मास्टर, को नहीं मालूम होगा ये. हाँ, ये जरूर मालूम है उनको और आपको भी मालूम है कि अलार्म्स आते हैं, राइट. जीपीएस में अलार्म्स आते हैं और जीपीएस पर अलार्म्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ को आगे बढ़ाया, अलार्म को रीसेट कर लिया और रीसेट करके इग्नोर कर दिया. हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली सीन कि वो अलार्म क्या है? थोड़ा हाथ रेस करेंगे आप? सर पोजीशनल डिफरेंस का आता था एक अलार्म. अच्छा, पोजीशनल डिफरेंस मतलब? हाउ मेनी पीपल एक्चुअली देखते हैं कि क्या अलार्म है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है.
अरे नहीं मालूम है तो बोलता ना नहीं मालूम है, या आप गेस कीजिए। कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है, कोई ओरल्स थोड़ी हो रहा है यहाँ पे जो आपको फेल हो जाएगा। सर जी वही अदर मतलब 2 जीपीएस रहते थे तो आता था कि जीपीएस 1 लॉस्ट, जीपीएस ऑन लॉग। जीपीएस 1 लॉस्ट। अच्छा लॉस्ट, अच्छा। और क्या एरर्स क्या होती है जीपीएस की? आपको जीपीएस की एरर्स बता दी ना आज। यस सर। क्या एरर होती है जीपीएस की? सर एक तो ऑर्बिटल एरर होती है। ठीक है, ओके, ऑर्बिटल एरर होती है। प्रोपोगेशन एरर, क्लॉक एरर सर। मल्टी एरर। ओके, सर जीटीओपी एरर। ओके, मल्टीपाथ एरर। मल्टीपाथ एरर सर। ओके, सर अब ये सैटेलाइट जीटी, क्लॉक एरर। हाँ ओके चलिए ठीक है, 6 एरर्स होती है आपकी, मोरलेस आपने सभी बता दिया। अब सैटेलाइट क्लॉक एरर इसलिए होती है कि सैटेलाइट की क्लॉक जो होती है एटॉमिक क्लॉक्स होती है, आपकी जो क्लॉक्स होती है वो नॉर्मल क्वार्ट्ज क्लॉक होती है। एटॉमिक क्लॉक्स $2 लाख की एक घड़ी आती है, $200 में आपका जीपीएस आ जाता है। सो ऑब्वियसली आपकी जो क्लॉक्स है वो सही नहीं है, तो उस पर एरर आ जाता है, ठीक है, टाइम का एरर आ जाता है। लेकिन वो जो इक्वेशन यूज करते हैं x1 माइनस एक्स ऑल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई, इसका y1 माइनस वाई, हाँ y1 माइनस वाई इसका ऑल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z इसका ऑल स्क्वायर, राइट। ये 3 इक्वेशन बनते हैं 3 सैटेलाइट से ना। यस सर, ये सूडो रेंज के लिए। तो बस, तो इससे आपका वो जो क्लॉक की जो एरर है वो खत्म हो जाती है। सैटेलाइट 1 से आएगा, फिर सैटेलाइट 2 से जो आएगा वो x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, z2 हो जाएगा, और सैटेलाइट 3 से जो आ रहा है वो x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, z3 हो जाएगा। तो 3 इक्वेशन आपको मिल रहे हैं 3 सैटेलाइट से। आपका जो कंप्यूटर है वो जीपीएस में जो कंप्यूटर है वो इन इक्वेशंस को रिजॉल्व करता है, आपको x और y दे देता है, x और y आपकी पोजीशन है, और बाकी एरर को एलिमिनेट कर देता है। 3 सैटेलाइट या 4 सैटेलाइट जो भी है, सो क्लॉक की एरर तो टेकन केयर ऑफ। ऑर्बिटल एरर दैट इज आल्सो टेकन केयर ऑफ। वो जो आपका नेविगेशनल मैसेज आता है 30 सेकंड्स का नेविगेशनल मैसेज, उसमें सब आ जाता है आपका एरर्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन योर टाइम एंड द क्लॉक टाइम वो भी आपको मालूम है, आपके रिसीवर को मालूम है। आपके रिसीवर को मालूम है कि सैटेलाइट 1 में क्या एरर है, सैटेलाइट 2 में कितनी एरर है, सैटेलाइट 3 में एरर बिल्कुल नहीं है, आपके रिसीवर को सब पता है। दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, ठीक है। अब HDOP है मेन, या GDOP बोलते हैं हम लोग। HDOP हॉरिजॉन्टल डायल्यूशन है। 5 टाइप के डायल्यूशन होते हैं, आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टाइम, PDOP एंड HDOP। हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, फिर टाइम हो गया, फिर पोजीशन हो गया, और क्या हो गया, हाँ जी, HD हो गया, वर्टिकल डायल्यूशन हो गया, पोजीशन, टाइम, और क्या होता है 5वां, एनीवे। सो हमारे 5 टाइप के ये डायल्यूशन होते हैं, प्लस डायल्यूशन ऑफ DOPs कहते हैं ना। एनीवे, ये जो है हमारा
HDOP and VDOP. HD is horizontal. GDOP. V is your vertical. पांचवा जो है वो आपका GDOP है. एक हॉरिजॉन्टल डायल्यूशन ऑफ पोजीशन है, एक वर्टिकल डायल्यूशन ऑफ, और इन दोनों का जो कंबाइंड है वो ये है GDOP, ज्योमेट्रिक डायल्यूशन. दैट मींस हाउ द सैटेलाइट्स आर स्कैटर्ड इन द स्काई. स्काई प्लॉट कैसी है. अब ये जो GDOP की वैल्यू अगर कम है, राइट, तो हम कहते हैं कि एक्यूरेसी है पोजीशन की. 0 से 4 के बीच में अगर इसकी वैल्यू है तो वी से दैट पोजीशन इज गुड, एक्यूरेट. जितनी कम होगी उतना अच्छा है. दैट मींस द एंगुलर सेपरेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इज गुड, राइट. 4 से 8 के बीच में है तो इट इज पुअर. अगर आप इसको यूज कर रहे हो पोजीशन को तो यूज इट विद कॉशन. और 8 से ऊपर आता है सो इट इज नॉट रिलायबल. और हो सकता है कि आपका जो GPS है वो DR मोड में चला जाएगा. ठीक है. और जब DR मोड में GPS जाता है तो यहां पे गड़बड़ होती है. यहां पे अलार्म दे देगा वो आपको. अगर आपका GDOP ओके, ये कहीं पे 6 में अलार्म दे देगा, कहीं पे 4 पे अलार्म दे देगा, कहीं 8 पे अलार्म दे देगा, वो बात अलग है. बट इट विल गिव यू एन अलार्म द मोमेंट इट गोस इनटू DR मोड. अब DR मोड में जब आप जाते हैं और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये नहीं देखा कि क्या है, तो DR का मतलब क्या होता है? डेड रेकनिंग. बस आपका कोर्स ले रहा है और आपकी स्पीड ले रहा है, करंट को नहीं ले रहा है. ठीक है. तो वो DR कैलकुलेट इधर कर रहा है, आप हो सकते हो इधर हो, यहां से करंट आ रहा है. चलिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं है. नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे हम, जब भी इसका लेंगे कीपिंग एन वॉच इन पोर्ट, तो उस टाइम में ये जल्दी खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक. तो तब मुझे याद दिलाना, मैं उसको लूँगा और इसमें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या हुआ है. ठीक है. बिकॉज लाइक आई सेड, पहले मैं ये BTM भी कराता था, ब्रिज टीम मैनेजमेंट का जो सिमुलेटर कोर्सेज हैं, तो वहाँ पे मैं ये सिचुएशंस क्रिएट करता था और तब पता चलता था कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या हो सकता है GPS से. बट दैट विल टेक इन नेक्स्ट टाइम, जब खत्म हो जाएगा वो कीपिंग अ वॉच इन पोर्ट, देन आई विल टेल यू अबाउट दिस. हो सकता है तब तक आपका GPS भी कंप्लीट हो जाए पूरा. ओके गाइस, थैंक यू सर. चलिए. थैंक यू सर. थैंक यू चलिए. ओके. हाँ चलिए, टेक अ ब्रेक नाउ. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके जी, थैंक यू. थैंक यू सर.